Good morning, students. Why don't you speak? Have Okay, once again. Good morning, Good everyone. morning, everyone. Okay. Okay. Let's Let's see the information first of the lecture. we are We studying are studying behind poem poem number number 5. And what is the And what is the poem? A Legend A of Legend the of the Northland, Northland, written written by by Carey. See the See the poem. Legend of the Northland Northland means means the the country. We are going We are to going to read in any in any country which in falls in the northern northern area. northern नॉर्दर्न areas एरिया world. वर्ल्ड वर्ल्ड का वर्ल्ड का जो northern नॉर्दर्न एरिया है उसमें ये कंट्री कहीं ना कहीं फॉल करती है That's what we are what going we are to going read. Okay. okay See in the book, in the book everyone. This This poem poem narrates narrates the the legend of legend an of old an old lady lady who who angered Saint Peter Peter because because of her greed. greed. ये जो ये poem जो हम लोग poem हम read लोग करने रीड जा करने जा रहे रहे हैं, हैं, the poem we are going to read now talks talks about about a एक lady. लेडी एक के लेडी बारे के बारे में हमें बताती है जो जो एक एक संत संत को एक महात्मा को गुस्सा दिला देती है अपनी लालच की वजह से, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. लालच की वजह से वो जो है उस संत को गुस्सा दिला देती हैं और उसको बाद में भुगतना पड़ता है. Now you see Now you see students, students, this is a bit lengthy poem. इसको हम लोग बैले बोलते हैं. BALLED. साउंड साउंड होता है बैले. बैले बैले मीन्स क्या होता है कि कि किसी भी पोएम को स्टोरी की तरह नरेट करना. राइट Right? That That means we are narrating a story और or a poem. एक स्टोरी की तरह पोएम को हम लोग नरेट करते हैं. That's called ballet. So the So poem the poem we are going to read is a is a ballet. ये ballet है. हम read out कर रहे चलो हैं. भाई चलो भाई ध्यान ध्यान से. से. Let's continue with the first stanza. First First stanza देखो सभी के सभी. Away in the northland where the hours of the day are few and the and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Now you see away in the northland, northern areas के अंदर ये country fall करती है. काफी दूर जो है वो बताता है where the hours of the day are few. It happens with us also in the winter, like you talk about December and January. Days are small and the nights are longer. दिन जो है छोटे होते हैं नाइट के कंपैरिजन में. सेम happens in the northern countries के अंदर. कारण के दिन जो है ना बहुत छोटे होते हैं और रातें जो है बहुत बड़ी होती है. And the nights are so long in the winter. विंटर में जो काफी बड़ी होती है. That they cannot sleep them through. और ऐसा नहीं हो पाता कि वो सारी रात सो सके. क्योंकि out of 24 hours you see the nights are of 16 to 18 hours. 14 to 16 sometimes, and in the northern area it is around 18 hours night and 6 hours 6 to 8 hours of the day. 6 से 8 घंटे का दिन होता है और 16 से 18 घंटे की रात होती है. So is it possible that one can sleep for 16 to 18 hours? Is it possible that one can sleep to 18 hours? सो सकता हो सकता है कोई. संजना ठीक है. संजना can sleep. She is a bit lazy, slouch, but not everyone can sleep. हर कोई नहीं सो सकता ना. ये किसी के अंदर ये क्वालिटीज होती हैं जो 18 घंटे सोता रहता है. Like a कुंभकर्ण. But ऐसा नहीं है. No one can sleep 18 hours in today's time. Maximum 8 to 10 hours. Minimum 5 to 6 hours. 4 hours also. Right? So वहाँ पर क्या होता है, वो कहता है कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी हम लोग सारी रात सो सके, sleep कर सके. Where they harness the swift reindeer, the two sledges when it snows. And the children look like bears cub in their funny fairy clothes. Now you see where they harness means tie करना, बांधना. The swift means run fast. Reindeers. If you ever have seen the movies और जहाँ पर snowfall होती है, वहाँ पर
एनिमल, छोटे छोटे एनिमल्स, कुत्ते होते हैं, हिरन होती है, छोटे छोटे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनसे वो जो है डियर्स डियर्स होती हैं, जिनसे जो है वो व्हीकल्स को चलाते हैं। टू स्लेज स्लेज मीन्स खींचना, क्योंकि जो क्योंकि स्नोफॉल्स होती है वहां पर तो गाड़ियां चलती नहीं है। तो स्पेशल टाइप के व्हीकल्स होते हैं जो रेनडियर्स यूज करती है, और जो वो वहां पर रहते हैं उसको खींचते हैं। व्हेन इट When it स्नोज snows, जब भी स्नो होती है, बर्फबारी जब भी होती है, एंड द and the चिल्ड्रन children look like bears cub, और जो और जो बच्चे होते हैं वो भालू के बच्चों के जैसे लगते हैं। क्यों लगते हैं? इन देयर फनी फैरी क्लॉथ्स। अब सर्दियों में आप बड़े बड़े जैकेट्स और बड़े बड़े कपड़े डालते हो ना, इन विच यू डोंट फील द कोल्ड, जिसमें कि आपको ठंड नहीं लगेगी। यू मेक श्योर that you don't feel the cold, ठंड नहीं लगेगी ना, उससे बचने के लिए ऐसे कपड़े डालते हैं कि लगते हैं कि भालू के बच्चे बन गए। ह्यूमन बींग्स, इंसानों के जो बच्चे हैं भालू के बच्चों की तरह लगते हैं वो पैरी और फनी क्लॉथ्स पहनने के बाद। राइट एवरीवन, दिस वी नीड टू सी। यस, बोलो। हाँ, लिव इट। हाँ, tomorrow I'll give you. It's okay. Thank you. Okay, everyone. See, let's go to the next stage. They tell them a curious story. अब कहानी शुरू होती है कि उन बच्चों को जो है क्यूरियस मीन जिज्ञासु कहानियां सुनाई जाती हैं। स्टोरी आई डोंट बिलीव दिस, मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल सच्ची है, सही है। ये जो हमारा पोएट है वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई जो कहानियां जो बच्चों को सुनाई जाती हैं कि ये सही है, सच्ची कहानियां हैं। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन फिर भी आप इन कहानियों से एक लेसन सीख सकते हो, एक पार्ट सीख सकते हो, जिंदगी का एक लेसन सीख सकते हो। इफ आई टेल द टेल टू यू, और अगर उन सब में से मैं तुम्हें कोई एक कहानी सुनाऊं, पोएट इज टॉकिंग टू यू डायरेक्टली थ्रू मी, अगर मैं तुम्हें कोई कहानी सुनाऊं तो तुम उससे जो है एक लेसन सीख सकते हो, विच विल हेल्प यू इन योर लाइफ फर्दर। अपनी लाइफ में जो है, आपकी लाइफ में जो है आगे बहुत हेल्प करेगा। अगर मैं तुम्हें कोई टेल सुनाता हूँ, टेल मीन्स एक कहानी की बात कर रही है, राइट? सो लेट्स जस्ट कंसंट्रेट। Once, when a good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. Now you see, once एक बार वो कहता है कि एक बहुत अच्छा संत था, जिसका नाम था पीटर, लिव्ड इन द वर्ल्ड, और वो वर्ल्ड में रहता था जहाँ पे जिस तरह के एरियाज में हम लोग रह रहे हैं। बिलो मीन्स नीचे, जहाँ पर स्नोफॉल्स नहीं होती है, ज्यादा ठंड नहीं है, डेज एंड नाइट्स आर अबाउट इक्वल, नो प्रॉब्लम्स। बिलो मीन्स मीनिंग। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग मीन्स संदेश देना लोगों को। और ये करते जो है वो भी जस्ट एज ही डिड, और जैसे वो किया करता था, यू नो, जैसा कि आप सबको पता है, संत महात्मा क्या करते हैं, वो उपदेश देते हैं अच्छे इंसान बनने के बारे में, अच्छी एटीट्यूड लाइफ मेंटेन करने के बारे में, धार्मिक और सोशली और व्यावहारिक बातें करने के लिए। सो ये सब बातें हमें पता है, संत महात्मा जो करते हैं। He came to the door of a cottage, और वो महात्मा जो है वहां पहुंच जाते हैं नॉर्दर्न लैंड के अंदर, और एक कॉटेज, एक घर पर पहुंच जाते हैं। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, पूरी धरती पर घूमते हुए। अर्थ मीन्स यहाँ पर कहता है कि पूरी धरती पर घूमते हुए जो है वो कहाँ पहुंच जाते हैं? कॉटेज के अंदर पहुंच जाते हैं। Where a little woman was making cake and baking them on the hearth. वहां पर जो है एक छोटी औरत है जो क्या कर रही है? केक्स बना रही है खाने के लिए, राइट? एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और अंगीठी के ऊपर जो है, हर्थ मींस अंगीठी, कोई भी ऐसी चीज जिस पर के खाना पकाया जाता है, उस पे वो क्या कर रही है? उसको पका रही है। बेक मींस होता है पका, बेक मींस पकाना के वो वहां पर उसको पका रही है, बेकिंग कर रही है। एंड बीइंग पेइंग विद फास्टिंग। Let's go to the next stage. अब वो वहां पर उसके एक डोर पर, दरवाजे पर पहुंच जाते हैं कॉटेज के घर के, और वो जो है केक खाना पका रही है, बना रही है। एंड बीइंग पेइंग,
with with fasting, for the for the day day was was almost done. Faint Faint means means बेहोश बेहोश होने ही वाला होता है फास्ट की फास्ट की वजह से। वजह से। फास्ट फास्ट मींस मीन्स फास्ट मींस फास्ट क्या मीन्स क्या होता है? होता है? व्रत व्रत रखना, रखना, ठीक है। तो व्रत तो रखने व्रत की वजह से वजह से बेहोश होने वाला होता है। फॉर द डे और द डे वाज वाज ऑलमोस्ट डन, और दिन जो है खत्म होने वाला होता है, फिनिश फिनिश हो चुका होता है, नाइट का समय आ गया होता है। कि He asked her from her store of cakes, और वो मांगता मांगता है, है, आस्क पूछता है, मांगता है उससे कि भाई कि भाई अपने केक केक की स्टोर स्टोर तुम्हारे पास है, जहाँ पर जहाँ पर तुम्हारे पास केक्स केक रखे हुए हैं, टू गिव अ सिंगल वन, उसे कि उसे जो है वो एक केक अवेलेबल करा दे, उसे वो एक केक दे खाने के लिए, बिकॉज ऑफ हंगर इज अबाउट टू फेंट। वो जो है बेहोश होने वाला है भूख के मारे। राइट राइट एवरीवन, लेट्स गो टू लेट्स गो टू नेक्स्ट। So she made made a very little cake. और वो एक छोटा सा केक बनाती है, बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब वो इसको पकाने के लिए छोड़ देती है हाथ के ऊपर, शी लुक्ड एट इट, और वो इस केक की तरफ देखती है। वो जो लेडी है वो इस केक की तरफ देखती है, एंड थॉट इट सीम्ड, और उस केक को देख करके उसको विचार आता है, उसको ऐसा लगता है टू टू लार्ज टू गिव अवे। ये केक जो मैं उसके लिए बना रही हूँ, महात्मा के लिए, सेंट के लिए, सेंट पीटर के लिए बहुत बड़ा है। उसको ये महसूस होता है कि जो केक मैंने बनाई बहुत बड़ा केक है। ये सोचती है वो, ये देने का नहीं है, टू लार्ज टू गिव अवे, देने के लायक नहीं है, बहुत बड़ा है। Therefore she needed another, needed को अंडरलाइन कर लो भाई, होता है आटा गूंदना, आटा गूंदते हैं ना रोटी बनाने के लिए, बेक, इसको केक बोलते हैं हम लोग, केक को रोटी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। केक बनाने के लिए वो दोबारा से आटा गूंथती है, अनदर नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और फिर जो है वो उससे भी थोड़ा बना देती है एक केक खाने के लिए रोटी। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, और जब वो इसको टर्न करके देखती है बेक करते समय, तब उसको क्या लगता है, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, और उसको जो है ये केक उतना ही लार्ज लगता है, उतना ही बड़ा लगता है जितना कि पहले वाला। समझ आया? यानी कि जो पहला केक उसने बनाया था वो बड़ा लगा उसको, फिर उसने सोचा कि थोड़ा छोटा बनाया, लेकिन ये छोटा केक भी उसको उतना ही बड़ा लगा कि जितना पहले वाला था। ठीक है। Let's see the next one. Then she took a tiny scrap of dough. Dough means जो आटा लेते हो आप लोग गूंदने के लिए, right? आटे का डबिंग करते हो जो, and rolled it flat. Rolled means रोल करते हो चकले से, और इतना रोल कर दिया कि वो बिल्कुल पतला हो गया। देखो, and baked it thin as a wafer. वेफर मीन्स होता है थिन स्लाइस, बिल्कुल पतली स्लाइस, जो इतनी पतली बना दिया उसको, थिन स्लाइस, बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, राइट। इतना पतला उसको वो बना देते हैं, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसको भी अपने से अलग नहीं कर पाई, वो उसको भी अपने से अलग नहीं कर पाई, मीन उस संत को नहीं दे पाई। वो इतनी ग्रीडी थी, इतनी लालची थी वो लेडी, that she could not part herself. अपने से वो छोटी सी थिन से उसने जो चपाती बनाई थी, जो केक बनाया था, वो नहीं दे पाई वो, और शी सेड, और उस पर वो क्या कहती है, my cake that seemed too small when I eat of them myself. वो कहती है कि जब मैं इन केक्स को खाती हूँ अपने आप, तो मुझे बड़े छोटे लगते हैं। जब मैं खाती हूँ, वो लेडी कहती है कि जब मैं खाती हूँ ना, तो मुझे बड़े छोटे लगते हैं। Are yet too large to give away, so she put them on the shelf. लेकिन जब यही केक मुझे किसी दूसरे को देने होते हैं ना, तो मुझे बहुत बड़े लगते हैं। इतनी लालची है। देखो, जब मैं खाती हूँ तो बड़े छोटे हैं, और देने होते हैं तो इतने बड़े। Is that possible? उसका एटीट्यूड था। She was so greedy, so लालची थी वो। She was full of greed, लालच की भरी हुई थी। That she did not want to share the things with anyone else.
अपनी चीजों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। राइट राइट एवरीवन, बोला करो भाई। हाँ, थोड़ा लाउड बोला करो अच्छे से। चलो देन वुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। और इस पर क्या होता है कि जो संत वहां पर उसके दरवाजे पर आए हुए थे वो गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। फॉर ही वाज हंग्री एंड पेन। और वो जो है बहुत ही ज्यादा भूखे थे और बेहोश होने वाले थे, भूख के मारे। Isn't it possible कि कोई 2-4 दिन से भूखा हो तो उसको बेहोश भी हो सकता है वो, जब तक उसे खाना ना मिले या फिर पानी ना मिले। कुछ समय तक हम पानी पर जीवित रह सकते हैं, लिक्विड के ऊपर। देयर इज अ लिमिट, बट फॉर दैट वी नीड टू ईट आल्सो समथिंग। तो जिसकी वजह से वो बेहोश होने वाला होता है। एंड surely such a woman was enough to provoke a saint। और इस तरह की औरत संत महात्माओं को गुस्सा दिलाने के लिए काफी है। इस तरह की लालची औरतें जो होती हैं, संत महात्माओं को गुस्सा दिला दिया उसने। प्रवोक मीन्स होता है उकसाना, गुस्सा दिलाना। और जिसकी वजह से संत महात्मा को जो है क्या हो गया, गुस्सा आ गया, प्रवोक हो गए। एंड इस पर सैड, और वो कहते हैं यू आर फार टू सेल्फिश। तुम जो है बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो। सेल्फिश मीन्स बड़ा विनीति का क्या होता है? सेल्फिश। If you say this to Sanjana, you are very selfish. Do you know what does it mean by? कौन बताएगा? चल भाई बता। लालची तो ग्रीडी होता है। Selfish. We say to the one who thinks about him or herself only। अपने बारे में सचेत है वो, किसी दूसरे के बारे में नहीं। राइट, वेरी गुड now good, that is close to the greedy also, right? So what we find कि वो सेंट कहता है कि भाई यू आर टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। इंसानी जिंदगी में, इंसान फॉर्म में रहने के लिए तुम बहुत ही ज्यादा लालची हो। तो है बोथ फूड एंड शेल्टर। तुम्हारे पास खाना भी है और रहने के लिए आश्रय भी है। शेल्टर भी रहने की जगह को हम लोग शेल्टर बोलते हैं, जिसको हिंदी में आश्रय बोला गया है। एंड फायर टू कीप यू वार्म। और तुम्हारे पास आग भी है जिससे अपने शरीर को जो है वार्म रख सकते, गरम रख सकते। सेंट पीटर said this to that lady, now you shall build as the bird do। और वो उसको जो है कर्स कर देते हैं, श्राप दे देते हैं सेंट पीटर कि भाई आप जो है ना अब क्या बन जाओगी? What? Bird। श्राप देते हैं कि तुम बर्ड बन जाओगी, जैसे बर्ड होते हैं। and shall get your scanty by boring and boring। और तुम्हें तुम्हारा खाना कैसे मिलेगा? बोर करते हुए। वुड पैकर समझते हो? लकड़ियों के अंदर जो लग जाता है घुन, जिसको हम बोलते हैं, उसको इंग्लिश में वुड पैकर हम लोग बोलते हैं। कि वो जो है अब क्या बन जाएगी? वुड पैकर, जो कि लकड़ियों में वुड में बोर कर करके उसको जो है खाना मिलेगा, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। सूखी लकड़ी के अंदर पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसको खाने के लिए मिलेगा। उसको श्राप दे दिया सेंट पीटर ने कि भाई अब तुम जो है बर्ड बन जाओ, वुड पैकर जिसको वो बोलता है। सारा दिन तुम बोर करोगी लकड़ी के अंदर, जो लकड़ी है इसमें बोर करोगी, और तब तुम्हें जो है खाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा। समझ आया? यानी कि उसको श्राप दे दिया सेंट पीटर ने। देन अप she went through the chimney, never speaking a word। And out of the top flew a woodpecker, for she was changed a bird। अब ये घर की चिमनी से होते हुए बिना कोई शब्द बोले, क्योंकि उसकी जो बॉडी थी, जो ह्यूमन फॉर्म, वो चेंज हो जाती है एक वुडपेकर में। वुडपेकर इज होता है बर्ड, राइट। और जो लकड़ियों के ऊपर बैठता है और जो लकड़ियों
गुरेज के, जिसको बोरिंग हम इंग्लिश में बोलते हैं, अपना खाना निकालता है और फिर वो खाता है। सो वो क्या होती है कि वो लेडी जो है क्या बन जाती है, बर्ड वुडपेकर, एंड आउट द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, और वो वुडपेकर बन करके चिमनी से होते हुए टॉप के घर से बाहर निकल जाती है, बाहर चली जाती है। फॉर शी वाज चेंज्ड अ बर्ड, वो जो है एक बर्ड में चेंज हो गई थी, वो वुडपेकर बन गई थी, तो वो फ्लाई कर गई, उड़ गई। Now you see Now you see the next one. She had a scarlet cap on her head. Scarlet Scarlet cap cap bright is red. red. That is the That is the appearance appearance of the woodpecker bird कि bird, ऐसा ऐसा दिखता है, दिखता है, and and that that was was left the same. the same. और वो बिल्कुल same थी. But all the rest of her clothes, लेकिन उसके जो जो सारे कपड़े थे, burnt, जल गए, जो कपड़े उसके थे वो सारे जल गए, black as in the flame, बिल्कुल काले हो गए थे, जैसे आग की लपटों के अंदर जल करके कोयला जलता है, जलने के समय वो लाल होता है, उसके बाद जो है वो क्या हो जाता है, ब्लैक, काला हो जाता है। तो सारे के सारे कपड़े जले हो गए, एंड एवरी स्कूल बॉय हैड सीन हर इन द वर्ल्ड, और हर जगह, कंट्री मींस हर गांव, हर गली, हर जगह के बच्चों ने जो है उसे देखा है, हैड सीन हर इन द वर्ल्ड। क्या कभी तुमने देखा है लकड़ी लगा हुआ? सबने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन। कुछ ट्री ऐसे होते हैं जो गल सड़ जाते हैं, उनमें लग जाता है, दैट्स कॉल्ड वुडपेकर, जिसको बोलते हैं। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहां पर वो ट्री के अंदर क्या करती है, लिव करती है, रहती है, टिल दिस वेरी आज तक के दिन में वो करते हैं, राइट, टिल दिस वेरी डे, pouring and pouring food, और फूड के लिए वो वहां पर बोर करती है। बोरिंग मीन्स करती रहती है, वो रेती रहती है खाने के लिए, वो निकालने के लिए। अब लकड़ी को खाता है वुडपेकर, तो उसको कुरेदता रहता है, बोरिंग कुरेदता रहता है, वो अपने खाने की चीजें वहां से इकट्ठा करता है और खाता है। बोरिंग एंड बोरिंग। सो हमारा पॉइंट कहता है कि बच्चों ने ये सब देखी है और उन्होंने इसको समझा है। नीचे देखो दिया हुआ जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया, इसको पहले बोलते हैं, स्टोरी की फॉर्म में इस सॉन्ग को नरेट किया जाता है और बताया जाता है, ठीक है। लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज पे आ जाओ। राइमिंग स्कीम क्या यूज हुई है कि नहीं हुई है? You will do one thing. In all the poems, you all are given the rhyming schemes of the poem. You will do one thing. You will use your mind to find out the rhyming schemes in the poem. Then later on I will tell you, and then you will cross check whether you are right or wrong, because this is the fifth poem. First four poems we did. In them I taught you the rhyming schemes. मैंने आप सबको rhyming schemes सिखाया है कि alliteration है, या फिर जो है anaphora है, या फिर repetition है, annocence है, या quotient है, right? Last poems को एक बार देखना सभी के सभी, and then find out the poetic devices. Rhyming scheme क्या है, poetic device क्या है, find out करके आज का होमवर्क तुम्हारा ये रही। नेक्स्ट लेक्चर कल जो है मैं तुम्हें पहले ये बताऊंगा कि व्हाट आर राइमिंग स्कीम्स इन दिस पोएम। दिस विल टेक 5 minutes, and next we will go. Right everyone? Is that okay? Okay, that's enough for today's lecture.